Assalamu alaikum. Good evening, my dear students. Walaikum salam. Walaikum salam. As you know that this is particularly specially for JK SSRB aspirants. There are also my few students of college, and it is known to you that this is grammar and it is for all. This is our lecture number second for JK SSRB aspirants. As yesterday we have started the very important topic. As I have already told you that it is very important, it is also known to you that is tennis, and still it will take 2 to 3 days to complete the tennis. And inshallah, I assure you once again that inshallah you will be able to understand 100%. I give you guarantee anybody, any student who will not understand the tennis from me, he can take fine from me. वो मुझसे जुर्माना भी ले सकेगा अगर उसको टेनिस समझ में नहीं आएगा. हाँ, मगर एक ही बात है कि आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, और जहां भी आपको डाउट होगा वहां मुझे कहना सर हमें यह समझ में नहीं आया है, क्योंकि मुझे कहाँ पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं. ये बदकिस्मती है कि टीचर कहता है समझ में आया, स्टूडेंट्स कहते हैं हाँ सर. ऐसा नहीं होना चाहिए. एजुकेशन टू वे होनी चाहिए. जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा तो वहां आप कहेंगे सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया. ठीक है. हेलो. हाँ, आपको मालूम है कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट most of the students didn't give the answer or didn't reply. And if anybody replies, if his answer may be correct or incorrect, others laugh. But you have to remember once for all that actually they does not laugh upon that person who gives the answer. They laugh upon themselves. Because if he has spoken incorrect, that doesn't matter. It matters that he has given the answer. It doesn't matter to win or not to win, but it matters to play the game. Anybody who plays the game, he will win or he will not win. As important it is said that गिरते हैं शाह सवार मैदानी कारजार में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. The anybody who is riding upon the horse, he can fall down, and anybody who is traveling, how he can fall down. So in short, you have to give the answers, and you have to pose the questions, because by posing the questions you will be able to get the knowledge, get the information. You will be able to understand the doubts. So I hope that you will pose the questions, because it is, I once again I say that this is for specially for JKSSRB aspirants, and that is not easy exam. There is the competition. That is not you have to qualify only that. There you have to compete with other students. Okay, now we will come to our own topic, that is tennis. Tennis, I have told you yesterday. देखो ये क्या मतलब, कैसे इंसान है, एक तो खुद पढ़ना नहीं चाह रहे और दूसरे को भी प्रॉब्लम करते हैं. ये स्लाइड खराब होती है, ऐसा मत करो. कम से कम इंसानियत के लिहाज से ही ऐसा मत करो. ये ठीक नहीं होता है. स्टूडेंट्स को ये ठीक नहीं होता है कि टीचर को ऐसे करना. हाँ, मैंने आपको कल भी कहा था कि सेंटेंस, ये टेनिस actually has come from the Latin word tempus, which means time. यानी कि टेनिस लेटिन वर्ड से निकला है जिसका माने है टेम्पस, और टेम्पस का माने है टाइम. ये हमें टाइम दिखाता है किसका, काम का हमें ये टाइम दिखाता है. मैंने आपको कल भी कहा है, मगर ये खाली हमें टाइम नहीं दिखा रहा है, ये हमें स्टेटमेंट भी दिखा रहा है. I have told you yesterday that it does not only show us the time, it shows us also the statement of the action. तो मैंने कल ही आपको कहा है कि अगर हम देखेंगे तो टाइम के लिहाज से टेनिस के 3 किस्म हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो कि आपको मालूम है, आपने पहले से ही पढ़े थे. प्रेजेंट मीन्स टुडे यानी कि आज, पास्ट मीन्स गुजरा हुआ यानी कि कल,
फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल यानी कि आने वाला, यानी कि टुमारो. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू टुडे, दैट इज प्रेजेंट. I have taught you yesterday, that is past. I will teach you tomorrow, that is future. I think that now you are able to understand the types on the basis of time. Have anybody any doubt till this time? Hello. Okay, okay. Now there are also types of the tense on the basis of the statement. But before coming to the statement, I have already told you that all the actions, all the work has three stages. That is beginning, middle and end. फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हर किसी काम के 3 स्टेजेस होते हैं, यानी कि बिगिनिंग, मिडल और एंड. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे 8 बजे पढ़ाना है, वो मेरी बिगिनिंग है. 9 बजे तक वो मेरा एंड है. और इन बिटवीन मैंने क्या किया है? क्या मैंने आपको कहा है आप एंटर करो, फिर मैंने कहा अच्छा चलो आप 9 बज के जाओ, तो मैंने पढ़ाया नहीं. ये इन बिटवीन भी देखना है कि क्या उसने काम किया या नहीं. ये 3 लेवल्स है of every action. On the basis of these 3 levels, tennis is divided into 4 types. Tennis has 4 types. That is indefinite, जिसको simple भी कहते हैं, perfect, continuous और progressive, perfect continuous. ये 4 किस्म है टेनिस के on the basis of the statement और on the basis of this 3 stages of the action. यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? मैंने आपको कल ही कहा है इंडिफिनिट का माने है यानी कि नामुकम्मल. यहाँ क्या है नामुकम्मल? काम. यानी कि हमें मालूम नहीं है कि काम हमने कितने बजे से कितने बजे तक की. आई टीच, मैंने पढ़ाया, ये मालूम नहीं है मैंने कब पढ़ाया, कितने बजे से कितने बजे तक. आई ईट, मैंने खाया, ये मालूम नहीं है कब मैंने खाया. दैट इज इंडिफिनिट और सिंपल. यानी कि उसमें ना बिगिनिंग मालूम होता है, ना मिडल मालूम होता है, ना एंड मालूम होता है. यानी कोई जो मैंने लेवल्स ऑफ एक्शन का है तो हमें कोई लेवल इसमें मालूम नहीं होती है. हाँ. और इसके बाद है परफेक्ट. परफेक्ट का माने है मुकम्मल. ये परफेक्ट होता है यानी कि काम का बिगिनिंग भी मालूम होता है, मिडल भी, एंड भी. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी ये एग्जाम्पल दी है. मिसाल के लिए आपको मालूम है मैंने कितने बजे क्लास स्टार्ट किया है, क्योंकि आप मेरे क्लास में एंटर हुए हैं 8 बजे और अभी आप क्लास में ही हैं, तो हम 9 बजे खत्म करेंगे. आपको फिर पता चलेगा, आपको मालूम होगा कि 9 बजे तक हमने पढ़ा है और आपको मालूम है इन बिटवीन हमने क्या पढ़ा है. ये है परफेक्ट. इसमें बिगिनिंग भी मालूम होता है, मिडिल भी, एंड भी. और यहाँ याद रखना है एक बात कि अगर ये डिस्कनेक्ट होगी तो इसी लिंक पर, जो लिंक हमने पहले ही सेंड की है, उसी लिंक पर फिर से ज्वाइन करना है, क्योंकि 40 मिनट के बाद ये जूम ऐप खुद ही डिस्कनेक्ट होता है जैसे कल हुआ था. तो फिर इसी लिंक पर ज्वाइन करना है. हाँ. यानी कि परफेक्ट में बिगिनिंग भी, मिडिल भी, एंड भी नून होता है. अब है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का माने लगातार. मिसाल के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसी वक्त कोई एंटर करेगा, उसको मालूम नहीं है कि सर ने कब कंप्लीट किया है, और इसने एंटर किया है 2-3 मिनट यहाँ क्लास में वो रहा और फिर चला गया है. बट ही डजंट नो व्हेन आई हैव स्टार्टेड एंड ही डजंट नो व्हेन आई हैव कंप्लीटेड. इसको कंटिन्यूअस कहते हैं, यानी कि लगातार. परफेक्ट कंटिन्यूअस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस. जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें कॉम्बिनेशन है 2 टेंसेस की, दैट है परफेक्ट और कंटिन्यूअस. मैंने अभी आपको कहा है परफेक्ट क्या होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है. इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको याद रखना है इसमें बिगिनिंग और मिडिल नून होता है, मगर एंड जो होता है वो अननोन होता है. जो एंड होता है वो अननोन होता है. इसीलिए आपको याद रखना है इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं. यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हेलो, एनीबॉडी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाँ.
मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आपको किसी भी जगह डाउट रहेगा तो डाउट कहना है, क्योंकि तब फायदा है क्लास देने का। वरना मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको सेंड करूंगा तो वो भी, मगर ये ऑनलाइन क्लासेस का देने का फायदा यही है, क्योंकि यहाँ आपको ऑनलाइन ही ऑन स्पॉट क्लियर होंगे डाउट्स। अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, जो मैंने आपको कल भी कहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। एग्जाम में आपको यही पूछा जाते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। वहां आपको वो कोई सेंटेंस देंगे, वो कहेंगे ये कौन सा सेंटेंस है। मिसाल के लिए, आई आई टीच यू, ये कौन सा सेंटेंस है? आई टीच यू। वेरी गुड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई एम टीचिंग यू। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई वाज टीचिंग यू। वेरी गुड, पास्ट कंटिन्यूअस। यानी कि आपको मालूम है, जिनको मालूम है, मैंने कल भी कहा है, उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो सीखेंगे। उनको मुझे सिखाना है, जिनको मतलब उनको उन्हीं को मुझे सिखाना है। मगर वो खुद भी मतलब थोड़ा ध्यान रखेंगे तो मैं इंशाल्लाह अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। अब आपको समझ में आया है कि किसी ने जवाब दिया है तो ये तो ठीक है, अब बाकी भी इंशाल्लाह ऐसे ही जवाब देंगे। इसीलिए मतलब वहाँ आपको ऐसे ही सेंटेंस देंगे वो, और वो कहेंगे ये कौन सा सेंटेंस है। या वहाँ ब्लैंक्स होंगे, वो कहेंगे ब्लैंक्स में वो आपको फिल करना होगा, या हेल्पिंग वो फिल करना होगा। तो अब आपको याद रखना है। आप मगर अगर आपको मतलब वर्ब के बारे में पढ़ना होगा, फाइनाइट ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ना होगा, तो इसके लिए मैंने पहले ही कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर सेंड किए हैं, आप वो भी देख सकेंगे। वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है वर्ब किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। यानी कि यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में वर्ब कंपलसरी होता है, वर्ब के बगैर सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। इनके सब सेंटेंस वर्ब इज मैंडेटरी। वो मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है कैसे है, वो भी आप देख सकेंगे, वो यूट्यूब पर है। तो अब यहाँ आपको याद रखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, यानी कि अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी सेंटेंस को, ये कौन सा टेंस है। अब मैंने यहाँ लिखा है नोट, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस वी नीड टू थिंग्स। यानी कि टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, टेंस को देखने के लिए हमें दो चीज का मालूम होना जरूरी है। वी शुड नो टू थिंग्स, वो क्या है? नंबर वन हेल्पिंग वर्ब एंड नंबर सेकंड वर्ब फॉर्म। कौन कौन? टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किस किस का होना जरूरी है? हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब फॉर्म। हाँ हाँ हाँ। हेल्पिंग वर्ब में आपको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब बी, बी के ये फार्मस हैं, ये बी के ही फार्मस है। कभी कभी मैं आपको फिर सिखाऊंगा, कभी कभी वहां ब्रैकेट में बी होता है, आपको बी नहीं लिखना होता है, आपको बी के बदले इज एम आर वाज वे लिखना है। इसमें आप देखना है कि कौन किस जगह इस्तेमाल होगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट में। यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसी तरह है हैज, हैव, हैड, विल, शैल, एटसेट्रा, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स का मायने है, आपको याद रखना है, मैंने वहाँ उस लेक्चर्स में जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है एडजेक्टिव किससे कहते हैं, एडवर्ब किससे कहते हैं। मैंने वहाँ कहा, अब तो यहाँ अगर मैं कहूँ तो इससे डाइवर्ट होंगे थोड़ा, तो अब आपको याद रखना है ये हेल्पिंग वर्ब्स है। वो अगर आप चाहेंगे तो वो आप देख सकेंगे वहाँ। हाँ, अब है वर्ब फॉर्म। और वर्ब फॉर्म का जरूरत है। वर्ब फॉर्म आपको मालूम है चार होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? मिसाल के लिए गो, वेंट, गॉन। फोर्थ है गोइंग, यानी कि बेस प्लस इंग। कुछ मैं किस पर शेयर करूंगा, हमारा तो कोई ग्रुप नहीं है। अब एक बात करो, आप इसी का, हाँ, उसमें यूट्यूब पर खाली वीडियोस ये अपलोड होते हैं। कोई बात नहीं, हम देखेंगे, कोई ना कोई ग्रुप हम बनाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, अब एक बात देखेंगे, अब एक बात करो, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, स्क्रीनशॉट उठाओ, तब तक जब तक हम कुछ ना कुछ देखेंगे। स्क्रीनशॉट उठाओ। हाँ, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्ब के चार फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। मैंने कहा है आपको वो याद करने ही होंगे, वो आपको, क्योंकि वहां कोई शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा है
मिसाल के लिए कुछ फॉर्म्स वो सेम होती है, काट काट काट, पुट पुट पुट, वो तो आसान है। मगर कुछ है गो वेट गॉन, ये ऐसे आपको कुछ है प्ले प्लेड 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 प्लेइंग, तो वो थोड़ा आपको याद रखने हैं। तो हाँ, नाउ यू इन शॉर्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस वी नीड टू थिंग्स, दैट इज वर्ब फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ब। ये आपको याद रखने हैं, ये आपको आप याद रखना है वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है और वर्ब फॉर्म क्या क्या है, ये आपको याद रखने हैं। जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन किया है उनको मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डिस्कनेक्ट होगा तो इसके बाद इसी लिंक पर जो मैंने सेंड आपको पहले की थी उसी पर ज्वाइन करना है। हाँ, यहां तक किसी को कोई डाउट, प्लीज क्वेश्चन पूछो, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। बाय posing the questions you will be able to understand, क्योंकि आप तो मेच्योर हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर क्या फायदा है पढ़ने का। हाँ, प्लीज से क्वेश्चंस, इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, ये है टेनिस चार्ट, प्लीज टेक इट। Yes, yes, I will say. Okay, okay, I will repeat verb forms. This is tennis chart. Take it a screenshot because I have made it by my own. ये मैंने खुद बनाया है. You cannot see it anywhere in the books and it will be helpful for you. हाँ, कोई कह रहे हैं सर verb forms. मैंने कहा verb के 4 फॉर्म होते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म. वो किताब पर लिखे हुए हैं, गेमर पर लिखे हुए हैं. मिसाल के लिए go, went, gone, going. Eat, ate, eaten, eating. Play, played, played, playing. Cut, cut, cutting. Put, put, putting. Can you got me now? ये याद करते हैं आपको. यहां तक समझ में आया? हेलो. You can take screenshot. You can take screenshot. या फिर से आप जब वीडियो देखेंगे ना, फिर से आप जब वीडियो देखेंगे तो वहां भी आप देख सकेंगे फिर, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्डेड होता है, इसका रिकॉर्डिंग होता है और मैं फिर सेंड कर रहा हूँ यूट्यूब पर. सर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, जो वर्ब के काइंड्स मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर आप वहां भी देख सकेंगे, ये फिर यूट्यूब पर अवेलेबल होगा. हाँ, काइंड्स ऑफ वर्ब मैंने उसका एक वीडियो बनाया है, तो आप वहां देख सकेंगे. अगर आप वहां नहीं देख सकते तो मैं, हाँ, वीडियो क्योंकि उससे डाइवर्ट होते हैं, अगर वहां हम जाएंगे तो मुझे फिर कहना है फाइनाइट वर्ब या मियन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो उससे मतलब थोड़ा इस वक्त मुश्किल ही होगा, तो वो वहां ही मैंने वीडियो बना के रखा था उसके लिए. हाँ, अब आपको ये अब आपको ये चार्ट याद रखना है. इट इज वेरी कंपल्सरी, ये आपकी आंखों में होना चाहिए. सर प्लीज रिपीट फ्रॉम बिगिनिंग. नहीं, बिगिनिंग से हम रिपीट नहीं कर सकेंगे, ये वीडियो अपलोड होगा, ये आप फिर खुद देख सकिए. वो फॉर्म्स तो मैंने वहां बनाए हैं, ये आप फिर खुद से देख सकेंगे, ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर. हाँ, अब ये टेनिस चार्ट है, टेनिस चार्ट, क्योंकि बाकी लड़के तो बोर होंगे रिपीट करने से. ये टेनिस चार्ट ये आपको याद रखना है. देखो, अब मेहरबानी करके लिए याद रखना, दिल के कानों से सुनना. हाँ, देखो मैंने आपको अभी कहा है कि टेनिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जरूरत है 2 थिंग्स का. नंबर 1 वर्ब फॉर्म, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब. अब वही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म इस चार्ट में है, यानी कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और किसके साथ कौन सी वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होती है, वही इस चार्ट में लिखी हुई है. पहले मैंने आपको कहा है कि टेनिस के 3 किस्म हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, वो मैंने ऊपर लिखे हैं. ऊपर टेनिस, फिर लिखा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. फिर मैंने कहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टेनिस इज ऑफ 4 टाइप्स. वो यहाँ है वर्टिकल में, टेनिस इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. फिर मैंने आपको कहा है कि
इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो चीज का जरूरत है, दैट इज वर्ब फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए मैंने यहाँ इंडेफिनिट के ऊपर लिखा है वर्ब फॉर्म और नीचे लिखा है हेल्पिंग वर्ब। हर जगह मैंने यही लिखा है क्योंकि हमें ये जरूरत होती है। अब हमें देखना है ये ऐसे, अब हमें देखना है ऊपर का ये है प्रेजेंट, यहाँ लेफ्ट साइड है इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट विथ ऑल द इंडेफिनिट्स वी यूज फर्स्ट फॉर्म। मेहरबानी करके लिए वेट करो, मैंने कुछ गलत कहा है, आपको लगे उसने गलत कहा है। विद ऑल इंडेफिनिट्स वी यूज फर्स्ट फॉर्म। आप कहेंगे सर नहीं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। हाँ, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। वो मैं कहूंगा अभी का भी इस्तेमाल होता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। पहले आप याद रखो, हाँ आप 10 मिनट से इसके इस लिंक के, तो फिर से ज्वाइन करना है इसी लिंक पर। मैंने कहा है कि टेनिस के में मैंने कहा है कि दो चीजें इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म। अब मैं कह रहा हूं कि जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। इंडेफिनिट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। जहां भी आप पहली फॉर्म देखेंगी आप कहेंगे सर ये इंडेफिनिट है। अब पास्ट की बात छोड़ो, पास्ट इंडेफिनिट में कभी कभी सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल होती है। मैंने यहां लिखा है, आप देख भी सकेंगे, यहां मैंने ब्लू से लिखा है ऊपर फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, यहां लिखा है फर्स्ट, यानी कि ये मैंने फॉर्म्स लिखे। परफेक्ट के साथ हर हमेशा थर्ड फॉर्म। आपको याद रखना है जो परफेक्ट होता है उसके साथ थर्ड फॉर्म, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकेंगे कि जहां भी थर्ड फॉर्म होगी इसको हम परफेक्ट कहते हैं। कभी कभी परफेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, तो वो मैं कहूंगा आपको कहां होती है इस्तेमाल। यहां तक समझ में आया? ये बहुत आसान है, इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म। कभी कभी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल होती है। वो कभी कभी मैं भी कहूंगा कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के साथ फोर्थ फॉर्म। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ दोनों के साथ फोर्थ फॉर्म। अब बात है सर कंटिन्यूअस के साथ भी फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी साथ फोर्थ फॉर्म। अब फर्क क्या है? फर्क यह है परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ सिनस और फार भी होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ सिनस या दोनों नहीं होंगे, एक सिनस या फार। परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ सिनस या फार भी होता है। यहां तक समझ में आया? हेलो हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक? कोई डाउट? अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे इसका मतलब ये है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो या आप कहते नहीं। ये तो सीधी सी बात है, 100% आपको समझ नहीं आएगा, डाउट तो रहेगा। किसी को कोई डाउट? मैंने आपके लिए ही उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वरना मुझे उर्दू करना आता नहीं है। फिर भी मैंने आपके लिए ये किया है बाईगार्ड। मुझे बहुत दिक्कत होती है इंग्लिश में, मेरी फ्लुएंसी को। हाँ हाँ, एक बात है मेरी बेटी, आपने लेट ज्वाइन किया है, आप फिर से ये वीडियो देख सकेंगी क्योंकि ये अपलोड होगा यूट्यूब पर। क्योंकि अगर हम फिर से रिपीट करेंगे तो उससे बाकी लड़के बोर होंगे। हाँ देखो, फिर मैं कहूंगा, मैंने कहा है कि इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के साथ फोर्थ फॉर्म। फर्क ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ सिनस और फार, सिनस या फार भी इस्तेमाल होता है। अब आपको समझ में आएगा कि जहां भी आप फर्स्ट फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे ये इंडेफिनिट है, जहां भी आप थर्ड फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे सर ये परफेक्ट है। बहुत आसान है। जहां भी आप फोर्थ फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे सर या ये कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर सिनस और फार होगा उसके साथ तो आप कहेंगे सर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। समझ में आया? हाँ। अब आप कहेंगे सर चलो आपने कहा है कि इंडेफिनिट क्या है, परफेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, मगर हमें कहो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कैसे पहचानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे?
वो तो हमारे लिए मुश्किल है। हाँ, उसके लिए आपको याद रखना है, उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। क्या मैंने कहा दो चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक मैंने कहा है वो फॉर्म तो हमने कंप्लीट किए हैं, अब है हेल्पिंग वर्ब। क्या हेलो हेलो हाँ, हेल्पिंग वर्ब में आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज इस्तेमाल होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज इस्तेमाल होता है। अब यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। डज इस्तेमाल होता है ही शी इट के साथ। यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है इसको, ही शी इट। डज ही शी इट में, यहाँ थोड़ा जूम करूंगा आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज ही शी इट के साथ इस्तेमाल होता है। डू बाकी, बाकी का माने यहां मिला है अदर, वी, यू, दे, ये है पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि यहाँ जहां फर्स्ट फॉर्म प्लस डू या डज होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने पहले ही कहा है फर्स्ट फॉर्म, और मैंने इस वक्त कहा है कभी कभी सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल होती है। वो भी अभी नहीं कहूंगा क्या। हाँ हाँ, प्लीज वेट, आई विल गिव यू लास्ट 5 मिनट्स। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ आपको याद रखना है उसके साथ डिड इस्तेमाल होता है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ डिड, यानी कि यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ये हर किसी के साथ, ही, शी, इट, वी, यू, दे, हर किसी के साथ ही इस्तेमाल होगा। यहां तक समझ में आया? फ्यूचर के साथ विल और शैल इस्तेमाल होता है आर, आई और वी के साथ, और विल होता है बाकी, वी, यू, दे। कभी कभी यहां भी आपको फिर कंफ्यूजन मत होगा, कभी कभी शैल भी विल के साथ, शैल भी, ये विल भी आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। तो वो मैं आपको जब मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ाऊंगा तो उसी वक्त में आपको कहूंगा कि कैसे वो इस्तेमाल होता है। मगर इस वक्त आपको टेनिस में याद रखना है शैल के साथ आई और वी इस्तेमाल होता है। ये समझ में आया? हेलो हाँ, अब है परफेक्ट। परफेक्ट के साथ मैंने पहले ही कहा है थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज और हैज या हैव। अब बात है हैज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट के साथ, हैव बाकी के साथ। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है हैड, वो एक ही है, वो हर किसी के साथ। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव, जैसे मैंने ऊपर कहा है जिसके साथ विल इसके साथ विल हैव, जिसके साथ शैल उसके साथ शैल हैव। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर। इज होता है इस्तेमाल ही, शी, इट के साथ, एम, आई, और आई आर जो है वो अदा का माने, मेरा ये कहने का मतलब है वी, यू, दे। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस के साथ इस्तेमाल होता है वाज और विया। वाज के साथ ही, शी, इट, और विया के साथ बाकी, यानी कि वी, यू, दे। इसी तरह पास्ट, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ विल बी, शैल बी, जिसके साथ विल इसके साथ विल बी, जिसके साथ शैल उसके साथ शैल बी। इसी तरह लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, और फोर्थ फॉर्म। और यहाँ सिंस और फार भी इस्तेमाल होता है। मैं अभी ये एक्सप्लेन करूंगा सिंस और फार कहाँ इस्तेमाल होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हैड बीन और फोर्थ फॉर्म और सिंस और फार। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ विल हैव बीन, शैल हैव बीन,
फोर्थ फॉर्म और सिनुसोइड फॉर्म। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो देख सकेंगे, ये यूट्यूब पर होगा, मगर जब मीटिंग एंड होगी तो फिर इसी जो हमारे लिंक पहले भेजी थी उसी पर ज्वाइन करना है, क्योंकि अब मीटिंग जो एंड होने वाली है। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक जो मैंने पढ़ाया है? एग्जाम्पल्स में फिर देखो लास्ट पर, मगर यहां तक मुझे कहो किसी को कोई डाउट है? क्या बोला है फिर से? ओके, परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन इस्तेमाल होता है ही, शी, इट के साथ, हैव बीन विद अदर्स।